Okay, so in the last class we have discussed the properties of arithmetic progression, right? All these four properties you discussed. That is, if an AP is given to you and you add the same constant to each of the terms of the AP, then also the resultant progression is an AP. ये पढ़ाया था मैंने, जैसे कि सपोज आपको पास एक AP है 1 2 3 4, this is an AP, right? Because the common difference is here what, 1, right? You add 1 to each term to get to the next term. The common difference is here what, 1. Now if I add a same constant to each of these terms, suppose I add 4 to each of them, for example 5 6 7 8. So after adding the same constant to each term of my AP, my original AP, the new progression that I get, that is also an AP. It is also an AP. ये पढ़ा दिया था. Similarly अगर आप देखो ना, and common difference वही रहेगा. Here the common difference was 1. Here also the common difference is 1. Check it out. Get it? Remember? This was discussed. Okay. Also I told you that if you subtract the same constant from each of the term of the original AP, the resulting progression or the sequence that you get, that is also an AP. जैसे कि यहाँ पर मैं एक सेम कांस्टेंट सब में ऐड किया तो जो मुझे रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला वो भी एक एपी मिला. एंड इफ आई हैड सब्ट्रैक्टेड द सेम कांस्टेंट फ्रॉम ईच टर्म देन ऑल्सो आई वुड गेट एन एपी. और ये भी पढ़ रखे थे अगर सारे टर्म में मैं एक नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूँ या फिर डिवाइड करूँ, सपोज I multiply a non-zero constant with each of them. For example, let's say I multiply 3 with each of them. What happens? Let's see. I have an AP here. 1, 2, 3, 4. I have an AP here. So let's just multiply a non-zero constant to each of them, right? For example, let's multiply 3 to each of them. What happens? Okay, this is an AP, right? Because the common difference you can see 1, right? AP means in order to go from one term to the next term, you add the same constant, right? And that constant is called common difference, right? So how do we find the common difference of an AP? We have to simply do what? an minus 1. Remember, this is the common difference. Common difference of an AP is equal to the value of one term, suppose the value of third term, minus the value of its previous term. Okay, I in order to get the common difference of an AP, what do? I will do what? One term minus its previous term, right? Third term minus second term, or second term minus first term, or fourth term minus third term, or 10th term minus 9th term. Okay, this is how I get AP. Common difference. Remember? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now if I multiply the same constant, Sir. Yes. 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 Sir, एक example should be. Yes, I'll do it. Yes. So if I multiply the same constant with each of these terms, right? What do I get? This becomes 3. This becomes 6. This becomes 9. This becomes 12. You see for yourself the new sequence that you got. This is also an AP. It is also an AP. And check it out what its common difference is. इसका common difference क्या है? देख लो बेटे. एक टर्म में 3 ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या बेटे? 3, राइट? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए व्हाट यू डू, आप एक टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है, राइट? गेट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सो एज यू कैन सी, अगर आप सेकंड Yes, टर्म, इफ यू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड टर्म, ओके, 6 minus 3 you get 3. Okay, third term minus second term, again 3. Fourth term minus third term, again 3, right? So the common difference is 3. So also the resulting sequence is an AP. And there is one thing you notice here. What was the common difference of our original AP? 1, right? 1. Now what is the common difference of our new AP? 3, right? 3. Okay. You can see Sir, 3. for yourself
in fact the common difference has also been multiplied with 3. You see, the common difference has also been multiplied with 3. You get my point? You get it? Yes, sir. Oh, Yes, sir. Yes, sir. okay. Unlike the previous case in which you are adding or subtracting the same constant, okay, to each term of an AP, the common difference did not change. Here the common difference doesn't change. Here also the common difference 1, and after adding the same constant to each of the terms, right, I also get the same common difference 1 here. You see 5, 6, 7, 8. But in case of multiplication, you saw for yourself what happened, right? Common difference get multiplied with that term, with that constant. Next, we also discussed that if you divide each term of an AP with the same non-zero constant, then the resulting sequence is also an AP. For example, I write an AP, write 2, 4, 6, 8. This is an AP, right? As you can see for yourself, here the common difference is what? 2. The difference between one term and its previous term, that is called common difference. Second term minus first term, 4 minus 2, 2. Third term minus second term, 6 minus 4, 2. Fourth term minus third term, 8 minus 6, 2. So the common difference is 2. Now, let's divide each of the terms by 2. What happens? Let's see. This becomes 1, this becomes 2, this becomes 3, this becomes 4. As you can see that after dividing each of the terms of my original AP with a non-zero constant, the resulting sequence that I get, that is also an AP, right? You can see for yourself. And the common difference here is what? 1. Clear? Well, check it out. Yes, sir. Check it out. Here, in the previous, Yes, sir. in the original case, what was the common difference? 2. Now, after the operation in the new arithmetic progression, what is the common difference? 1, right? So 1. So you 1. see, you see for yourself that in fact the common difference also got divided by 2. Okay, when you divided each term by 2, the common difference also got divided by 2. Clear? Got it? Okay. So that is the thing. Yes, sir. So you have to keep in mind, right? Okay. So take the screenshot. फिर हम सॉम के सॉम पे पढ़ लिए थे. ओके, टेक इट. Done? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Take it done? Okay. So in the last class we discussed sum of first n terms of an AP, arithmetic progression, right? I want to find the sum of the first n terms of an AP. For example, let's take an example. Let's have an AP. Let's say 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... And by ... mean what? It is an infinite series, right? An infinite AP means it has no last term. It goes on and on and on. You get it? It goes on and on and on. You just have to add a 2 to one term to get to the next term, because as you can see as clear as daylight that the common difference here is what? 2, right? So all you have to do is add a 2 to one term to get to the next term. So what will be the next term? 14. Then the next term 16. Then the next term 18, and so on and on and on and on. Okay. Achha, what is the first term in this AP? The first term is A. The first term is denoted by A, right? The first term is denoted by A. What is it? 2. What is the common difference of this AP? Common difference denoted by D, right? D. Some people like it CD, but better you write D, only D. Okay. What is the common difference here? As you can see, the common difference is what? 2, right? Sir, Everybody 2. got it? Common difference is 2. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now suppose I want you to find the sum of
the first, let's say the first 4 terms of the AP. Now this is my AP and I want to find the sum of the first 4 terms. Means I want to find the sum of 2, 4, 6, 8. Remember, these are the first 4 terms. So 2, 4, 6, 8. I want to find that sum. 2, 4, 6, 8. What is the sum here? Can you calculate? 4 plus 2, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20, right? Clear or not? Okay. Get it? 2 plus Yes, sir. 4, 6, 6 plus 6, 12, 6. Yes, 12. sir. Okay. But there is a formula, and the formula we have derived in the last class. Using this formula, I did not know the value. I do not need 4, 6, 8. I do not need them. All I need is the first term, the common difference, and this number 4, because we want to find the sum of the first 4 terms. This formula is sum of the first n terms of an AP, right? So the formula for sum of first n terms of an AP, Sn, was what? N by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay? Get it? Sum of first n terms of an AP. Yes, sir. Okay. In this case, Yes, sir. what is our A? What is the first term? A is, remember, the first term. What is A? First term is 2, right? 2. First term is 2. And common difference is coincidentally also 2, right? Common difference is also 2, coincidentally. And what is An? An क्या होता है कि sum of the first n terms. So, okay, here we are finding sum of the first 4 terms. Sum of the first 4 terms. So, what is N here? N is 4, right? 4. N is 4. As simple as that. So I want to find the sum of the first 4 terms. So I will let S4, right? S4, the first 4 terms. So replace N by 4. So 4 by 2 into 2. Replace A by what? 2, right? Plus replace N by 4 here. 4 minus 1. And D is what? 2. So find it. What happens? So this is 2 into this is 4, and this is what? 6, right? So 2 into 4 plus 6 is 10. So you get 20. Clear or not? Yes, sir. So this is how we are going to use Yes, this. sir. This is how we are going to use this formula. So take the screenshot. Done? Okay. Yes, sir. Take it. Done? Sorry. Yes, take it. Done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now let's talk about arithmetic progression and arithmetic series. Let's just distinguish between learn to distinguish between arithmetic progression and arithmetic series. What is arithmetic progression and what is arithmetic series? Well, progression is essentially a sequence. Right? There is in order to go from one term to the next term, you need a rule. You need to follow a pattern. Okay, then we'll call it a progression, right? Remember, for example, 2, 6, 18, 54, right? I shall call it a progression. Or a sequence. Why? Because in order to go from one term to the next term, what am I doing? I am following a particular pattern. Now that pattern could be anything. Here I am multiplying 3 with each term to get to the next term. 2 into 3, 6, 6 into 3, 18, 18 into 3, 54. Here I am following a particular rule, a certain rule, given rule. That is why I shall say that this sequence is a progression. And obviously this is called geometric progression, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. And similarly, if I suppose I get another sequence 2, 4, 6, 8, this is also a progression. And here also, in order to go from one term to the next, we are following a certain pattern, and the pattern here is we are adding 2 to each term to get to the next term. So these are called progressions.
and this progression is called what? Arithmetic progression, AP. You know it. It's called arithmetic progression, AP. Now remember, I have already taught you about series. I taught you about sequence, then I taught you about series. Now what is arithmetic series? What is arithmetic series? The expression obtained by sorry, handwriting is not that good. Expression obtained by putting a plus, right, in between each term of the AP. The expression obtained by putting a plus in between each term of the AP is called arithmetic series. Well, it's not that difficult to understand. Let me give one example. So let's just take the example that we just took. For example, I have an AP here, 2, 4, 6, 8, 10, dot dot dot. It is an infinite AP, right? It is an infinite arithmetic progression. It goes on and on and on and on and on. This is an AP. Now what is arithmetic series of this AP? I simply have to put a plus sign between each term, and the expression that I get, this expression itself is called arithmetic series. This expression, do you understand? Expression means this thing, the way we have written it, only this is called arithmetic series. Clear? Then if we Yes, add, Yes, sir. then if we add all these terms, and then find the value, that value is called sum of arithmetic series. कि AP का सारे टर्म्स के बीच में आप जब प्लस साइन डाल देते हो, यू गेट अरिथमेटिक सीरीज, दैट इज एन एक्सप्रेशन. बस उसका वैल्यू जब निकालते हो सबका ऐड करने के बाद, what the value that you get, that is called sum of arithmetic series. इसका value is not arithmetic series, इसका value is called sum of arithmetic series. ये expression itself is called arithmetic series. I hope you got it, right? Okay, so take the screenshot. Yes, sir. Take the screenshot. One second. Yes, take it. Done? Okay, take it. Yes, sir. Done. Done? Okay, take it down. Okay, let's move on. Okay. Yes, sir. Now let's just do Yes, let's just do a question. Okay. But before we do this question, let's just first look at the question. Where was it? जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे लास्ट क्लास में, वही क्वेश्चन आज करने वाले हैं. ठीक है? ओके. Where was it? Yes, this question. Example. Okay. Find the 10th common term between the arithmetic series this and this. So we have been given two arithmetic series. In fact, let me tell you, यहाँ पर अगर arithmetic series ना देके arithmetic sequence भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट इधर arithmetic series को लेकर कोई काम हम नहीं करने वाले हैं. सिंपली वही मतलब arithmetic sequence. arithmetic series एक एक्सप्रेशन बस है और कुछ नहीं. जब उसका सॉम निकालते हैं वो अलग हो जाता है, लेकिन वो सीक्वेंस बस एक एक्सप्रेशन है. तो इसको लेकर घबराने का नहीं, सिंपली एन एक्सप्रेशन. मतलब ये एक एपी है जिसका सारे टर्म्स के बीच में प्लस दिया गया है, बस काम खत्म. देखो एपी है कि नहीं, 3 + 7 3 + 4 7 7 + 4 11 देन एपी, बस प्लस दे देते हैं बीच में, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज. तो चलो मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूँ. लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन. 3 7 11 12 सॉरी 15. ओके, इनफैक्ट लेट्स डू व्हाट, let's take an easy question. Let me write 2 APs. चलो हम 2 AP लिखते हैं. एक है 1 2 3 4 5 ...
Well, dotted means what? Infinite AP, right? This is AP number 1. Are get it? This is AP number 1. Yes, sir. Yes, sir. Let me write another AP, AP number 2. Okay, let me write it like this: 2, 4, 6, 8, 10, dot dot dot. This is also an AP. As you can see here, the common difference of the first AP is what? What is the common difference of the first AP? 1, right? So 1. And what is the common difference of the second AP? The 2. 2, right? I am Sir, adding 2 two. to each term to get to the next term. The common difference is 2. Okay. Now, guys, can you tell me between the AP1 and AP2, between AP1 and AP2, do you see any elements common? Any member common? Any term common? Yes, I see here 2 is common, right? Right? 2 is common, right? 2 is there in AP1, 2 is also there in AP2, right? 2 is a common term between the two APs, right? Clear? In fact, Yes, sir. 2 here is the first common term between AP1 and AP2. दोनों AP के बीच में 2 इधर फर्स्ट कॉमन टर्म है. Well, what is the next common term? 4, right? 4. 4 is the next common term. The next common term is 4. Second common term. And similarly, I can find the third common term, the fourth common term. Remember? Clear? Okay? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, the sir. first common, the second. Okay. Now, the question is, find the fifth common term. गाइज यहाँ तक कितनों को समझ में नहीं आया? जरा बोलो कि फर्स्ट कॉमन टर्म का मतलब क्या हुआ दोनों एपी के बीच में, सेकंड कॉमन टर्म दोनों एपी के बीच में मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉमन टर्म का मतलब क्या होता है. आई होप यू गॉट इट, राइट? दोनों एपी के बीच में फर्स्ट कॉमन टर्म, सेकंड कॉमन टर्म. ओके, इसी तरह हम दोनों एपी के बीच में फिफ्थ कॉमन टर्म निकालना चाहते हैं. ओके, ना यू विल से सर निकालेंगे क्यों? ऐसे तो लिख लेते हैं. हाँ, ऐसे करके आगे लिखते हैं. जो नेक्स्ट ऐसे गिनते हैं. ये पहला टर्म मिल गया, पहला कॉमन टर्म मिल गया, दूसरा कॉमन टर्म मिल गया, तीसरा कॉमन टर्म भी निकालते हैं, फोर्थ कॉमन टर्म भी निकालते हैं, फिफ्थ कॉमन टर्म भी निकाल देंगे. सो इसके लिए पढ़ना क्या है? लेट मी टेल यू. अगर मैं आपको पूछूं फाइंड द 100th कॉमन टर्म, और ये एपी थोड़ा इजी एपी है, ये बड़ा इजी एपी है क्योंकि ये मतलब साहब में 1 ऐड करने से एक एपी मिल रहा है. ये कि डिफिकल्ट एपी नहीं, इजी एपी है. तो अगर मेरा मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, हाँ, और इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, इजी है. अब मैं अगर कॉमन डिफरेंस 5 और किसी का कॉमन डिफरेंस 7 दूँ, राइट? पहला एपी का कॉमन डिफरेंस 5, दूसरा एपी का कॉमन डिफरेंस 7 दूँ, एंड आई आस्क यू टू फाइंड द 100th कॉमन टर्म बिटवीन द टू एपीज, राइट? And that would put you in trouble, right? If you go in this method, right? That put you in trouble because it is very difficult to find the 100th common term. Clear? So you'll have to follow a rule. Hello, get it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me write the algorithm. How do you find it? First step, recognize the first common term. Recognize the first common term. This is the algorithm, okay? In order to find the fifth common term or any number of common term, whatever it is asked. The first step would be recognize the first common term. And what is the first common term here? Between the two APs, what is the first common term? 2, right? The 2. Here in this case the answer is 2, right? Here is equal to 2. हमारे यहाँ पर इसका आंसर 2 है. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि recognize and find the LCM between the common difference of the two APs, between the common difference
of the two APs. दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है और निकालने के बाद दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम भी निकालना है. और इधर हमारा दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस, पहला का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरा का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, राइट? द कॉमन डिफरेंस Yes, is sir. 1 and 2. So we have to Yes, sir. find, okay, so the common difference पहला का है 1 एंड दूसरा वाला एपी का कॉमन डिफरेंस इज 2. फिर हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 1 and 2, एलसीएम ऑफ दोनों कॉमन डिफरेंस, एलसीएम ऑफ 1 and 2. एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 and 2? 2, राइट? Because Yeah, between, clear? Okay, between two numbers, if one is a multiple of the other, then the multiple, the bigger number, that is the LCM. Remember, class 4 में पढ़े हो, right? LCM ऐसे निकालते हैं. Okay, this is the LCM of the two. Now the third step. Consider a new AP whose first term, अभी हमें एक न्यू एपी कंसीडर करना है. अभी हमें क्या करना है कि न्यू एपी कंसीडर करना है. कंसीडर ए न्यू एपी हुज फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ द टू एपीज. बेटे दोनों एपी का जो फर्स्ट स्टेप में कॉमन टर्म निकाले ना, दोनों एपी का फर्स्ट कॉमन टर्म, रिकॉग्नाइज द फर्स्ट कॉमन टर्म, 2 आया था दोनों में, राइट? दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म 2 आया था. अरे गेट इट? हाँ. Yes, sir. तो आपको बस क्या Yes, करना sir. है, ओके, तो आपको बस क्या करना है कि नया एपी कंसीडर करना है, कि न्यू एपी, यू हैव टू कंसीडर ए न्यू एपी जिसका फर्स्ट टर्म आप लेना, किसको लेना, दोनों का जो फर्स्ट कॉमन टर्म, राइट? दोनों का जो फर्स्ट कॉमन टर्म, उस फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ द टू एपीज. दोनों एपी का जो पहला कॉमन टर्म 2 है हमारे यहाँ, ये 2 को हम एक न्यू एपी का फर्स्ट टर्म के रूप में ट्रीट करेंगे. एंड whose common difference is the LCM of the common difference of the two APs. तो जो न्यू एपी कंसीडर करने वाले हैं उसका पहला टर्म क्या होगा, आपको पता चल गया है. बस आगे चलेगा, ये कि न्यू एपी है और ये न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस हम क्या रखेंगे, ये न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे बेटे, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम आया था, क्या आया था हमारे पास, 2 आया था, राइट? 2. हाँ, तो कॉमन डिफरेंस इधर 2 रखेंगे. अरे बेटे सबको समझ में आ रहा है? देन फाइंड, Yes, sir. फाइंड द, हमें एक्चुअली पूछा क्या था बेटे, पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़ो. क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द फिफ्थ कॉमन टर्म बिटवीन द टू एपीज. दोनों एपी के बीच में फिफ्थ कॉमन टर्म निकालने के लिए. बट हम यहाँ पर चालाकी करके क्या कर दिए कि न्यू एपी फॉर्म कर दिए, जिसका पहला टर्म क्या होगा, दोनों एपी का फर्स्ट कॉमन टर्म, एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम. उसके बाद हमें क्या करना है, बस फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द न्यू एपी. ये जो न्यू एपी मिला उसका फिफ्थ टर्म निकालो, न्यू एपी, एंड दैट इज द आंसर, तो हम एक काम करेंगे, बुक से ही जो क्वेश्चन दिया है उसी को लेके मैं इसको समझा दूंगा. टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट. डन? हेलो, डन? Yes, sir. Done, sir. Okay. Take it. Done. Okay. Take it. Okay. Let me erase it. Okay. Okay. So बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है 2 एपी दे रखा है और उसमें सीरीज दे रखा है. डज इट मैटर सीरीज? बीच में खाली प्लस लगा है बस. आपको तो सपोज आपको अरिथमेटिक सीरीज दिया है, क्या आप सीरीज से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्या? अंतर क्या है, बस पीछे प्लस लिखा है. इसका फर्स्ट टर्म इज 3 एंड इसका कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, 4, राइट? देख लो, अरे देख रहे हो, और क्या है, राइट? इसका फर्स्ट टर्म इज 1 एंड इसका कॉमन डिफरेंस इज 5, राइट? देख सकते हो, सब में 5 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट द 2 सीरीज हियर.
The two series given series are the two given series are एक दे रखा है 3 7 11 15 3 7 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus dot 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 ये सीरीज नंबर 1 and series number 2 is 1 plus 6 plus 11 plus 16 dot 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 6 right yes और then 5 ऐड करो बेटे 16 ये फर्स्ट एपी ये सेकंड एपी एंड क्वेश्चन इज फाइंड द 10th common term between these two arithmetic series. Well, can anybody tell me what is the first common term between these two series? ये दोनों सीरीज के बीच में पहला कॉमन टर्म कौन है? 11 है राइट? 11 राइट 11 इज द फर्स्ट कॉमन टर्म. तो हमें पूछा है कि ये दोनों के बीच में 10th कॉमन टर्म बताओ. फर्स्ट कॉमन टर्म 11, उसी तरह कोई एक सेकंड कॉमन टर्म हो रहा होगा, थर्ड कॉमन टर्म हो रहा होगा, ऐसे करके 10th वाला कॉमन टर्म हमें निकालना है. तो उसके लिए हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों का मतलब फिर पहले फर्स्ट कॉमन टर्म निकाल देंगे. फर्स्ट कॉमन टर्म इज इक्वल टू 11. दोनों के बीच में पहला कॉमन टर्म 11 है. उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. पहला का कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे, कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज इज व्हाट 4 राइट. 4 Now you find the common difference of the second series. What is the common difference second series? 5 right. the 5 5. And what is the next step Yes, of the sir. algorithm? What is the next step of the algorithm? Find the LCM of the two common differences. दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस निकाले हो, you have to find the LCM between them. Okay, what is the LCM? So LCM of the two common differences means LCM of 4 and 5. What is the LCM of 4 and 5? 20 right, because they are co-prime 20. numbers. स्कूल में पढ़े होगे, दो को प्राइम नंबर का अगर एलसीएम निकालना होता है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द एलसीएम राइट. ओके, सो एलसीएम इज 20. अब बेटा हमें एक न्यू एपी क्रिएट करना है. ए न्यू एपी हुज फर्स्ट टर्म, एक न्यू एपी लेना है जिसका फर्स्ट टर्म किसको रखेंगे, दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म जो है उसी को रखेंगे. दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म 11 है, तो जो न्यू एपी हमने क्रिएट किए उसका फर्स्ट टर्म इज 11 रखेंगे राइट. ए न्यू एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 11 एंड कॉमन डिफरेंस इज, दोनों कॉमन डिफरेंस के एलसीएम. बेटे समझ गए, क्लियर? yes sir Yes, sir. Yes, sir. एंड उसने हमें पूछा था कि दोनों एपी के बीच में 10th वाला कॉमन टर्म बताओ, 10th वाला कॉमन टर्म. लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यू एपी क्रिएट किए, इस न्यू एपी का बस 10th टर्म हमें निकालना है. हमें पूछा था दोनों एपी का 10th वाला कॉमन टर्म. बस अब हम क्या करेंगे कि जो न्यू एपी फॉर्म कर दिए, इस न्यू एपी का 10th वाला टर्म ही निकालना है बस राइट. द 10th टर्म ऑफ द न्यू एपी. अरे क्लियर? ओके. अच्छा, तो बेटे ये जो न्यू एपी बना, हाँ, जो न्यू एपी, इसका ए क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, व्हाट इज इट 11 राइट. 11 एंड इसका डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 20 राइट. 20 ओके. एंड जो न्यू एपी का हम क्या निकालना चाहते हैं, 10th टर्म मतलब T10 निकालना चाह रहे हैं राइट. ये निकालना चाह रहे हैं. आपको सबको पता है कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म. सपोज n नंबर ऑफ एक एपी है, देयर इज एन एपी एंड वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ द टर्म एट द nth पोजीशन. nth पोजीशन में जो टर्म है उसका वैल्यू क्या है, सो उसको डिनोट करते हैं Tn के द्वारा. उसको वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पढ़े थे लास्ट क्लास में. yes sir तो अगर मैं 10th में टर्म निकालना चाहता हूँ, मतलब n के जगह बस 10 लगाना है. हाँ, a इधर 11 है और इधर n के जगह क्या लिखना है, 10 लिखना है और d क्या है 20 है. तो 11 प्लस 10 माइनस 1 इज 9. 9 इंटू 20 इज व्हाट 180. 180 प्लस 11 विल बी व्हाट 191 तो इसका मतलब जो न्यू एपी मिला है, वो न्यू एपी का 10th टर्म क्या निकल के आया, 191. एंड बेशक 191 इज ऑल्सो
the 10th common term between the two original APs. ये जो दो OP दिया था इनका 10th common term ही वही होगा. क्या होगा? 191 होगा. बस ये प्रोसीजर कैसे आया, कहाँ से आया, हाउ डिड वी कम अप विद दिस एल्गोरिथम, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में इसके ऊपर इतना कुछ एलाबोरेशन नहीं है, सो मैं उसको समझा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता. फिर आई यू जस्ट अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम, राइट? गेट इट? दिस इज हाउ वी फाइंड द फर्स्ट fifth common term, sixth common term, third common term, whatever between two given APs. Clear? Take the screenshot. Are you done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, take it. Okay, done. Okay. So write down a question. Write down a question. You will do it at home. The question is: find the seventh common term between the APs. दो AP में दे रहा हूँ. एक दे रहा हूँ सपोज 1 3 5 7 डॉट ये AP है. दूसरे AP में दे रहा हूँ सपोज लेट्स से 1 सेकेंड. ओके, दूसरे एपी में दे रहा हूँ 3 ओके 9 12. तो ये दो एपी हैं, देख रहे हो बेटे. पहला का कॉमन डिफरेंस होगा कितना 2, दूसरा कॉमन डिफरेंस 3 है. तो दो एपी में दे रखा हूँ और दोनों का 7th वाला कॉमन टर्म निकालना है. फर्स्ट कॉमन टर्म तो दिख रहा होगा 3 है, तो ऐसे करके 7th वाला कॉमन टर्म क्या होगा वो निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इसका दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेना होगा, दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म निकालना होगा, एक न्यू एपी कंसीडर करना होगा. और न्यू एपी का फर्स्ट टर्म आप किसको लोगे, दोनों का जो फर्स्ट कॉमन टर्म उसी को लोगे. न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस किसको लोगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम आया है उसको लोगे. उसके बाद क्या करोगे कि न्यू एपी जो बना है उसका 7th टर्म बस आपको निकालना है. अरे गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Take it. Yes, sir. Take it. Done. Let me erase it. 191. Okay. Okay. Next question. Next theorem is very important theorem. The theorem is you just have to take the screenshot of this theorem and then you just have to write this sentence. I do not need to write it. So the thing is, if nth term of a progression is a linear expression in n, then show that it is an AP. Take the screenshot of this. सिर्फ ये theorem लिखना है आपको रेड कलर में जो. Done. Okay. Done, sir. Okay. Yes, sir. So what it actually trying to convey, what message is actually trying to convey here is कि अगर हमें दिया गया है कि let's say the nth term of an AP, the nth term of an AP is, the nth term of an AP is, let's say 2n plus 3. This is the nth term of an AP. Nth term means what? Tn, right? Tn is equal to 2n plus 3. According to the question, the nth term is 2n plus 3. Obvious. Nth term is the term at the nth position. And this is called what? This is called general term. This is called general term. And there is a reason why we are calling it a general term. Because इसी फॉर्म यही टर्म में बस n का जगह आप एक एक करके नेचुरल नंबर डालते जाओ, उस एपी का एक एक टर्म आपको मिलता जाएगा. इफ यू वांट टू फाइंड द 5th टर्म ऑफ दिस एपी, all you have to do is replace n with 5. In the expression also replace n with 5 and you will get the 5th term. That's it. If you want to get the 7th term, what do you do? Replace the n with 7. Well, you will get the 7th term. That is why it is called the general term, because this term gives us the values of all the other terms, right? That's actually called the general term. ये पर बढ़ा दिया था. Okay.
तो उसने दे रखा है कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन का, ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन है एपी, अरे मैं एपी लिख दिया क्या, ऑफ ए प्रोग्रेशन लिखता हूँ, ऑफ ए प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास एक प्रोग्रेशन है एंड उसका nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन इन है। अच्छा बेटा आप सबको दिख रहा है दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, अरे देख रहा है ये कि लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर कौन बताएगा बेटे, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या बेटे, पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटे, लीनियर। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। और अगर कोई पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बोल रखा है कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन का nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन इन n हो, जैसे कि इधर ये एक लीनियर एक्सप्रेशन, then in that case blindly I can say that the above progression is an AP, the above progression is an AP। blindly, if I know for sure that the nth term of an AP is a linear expression in n, then I don't need to know its terms, I don't need to know its common difference, I don't need to know anything. Simply by looking at the nth term, if it is a linear expression, then I can clearly say that this is an AP, this is an arithmetic progression, this is the nth term of an arithmetic progression. So let's just prove it. Hello, get it? Okay, let's just prove the theorem. वो बोल रखा है कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन का nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन इन n हो, सो लेट्स से Tn is equal to let's say we have a progression and its nth term is equal to an plus b। और कौन मुझे बताएगा मैं क्यों nth टर्म को an plus b लिखा और कुछ क्यों नहीं लिखा बेटे, ऐसे ही लिखा था लीनियर एक्सप्रेशन को। आप स्कूल में पढ़े थे ना x प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं बेटे, x प्लस बी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अरे गेट इट? हाँ यस सर। Yes, sir. So Yes, sir. मानो there is an AP and its nth term is an plus b। तो हमें प्रूव करना है, we have to prove that this is हमें एक कोई भी प्रोग्रेशन का, लेट्स से Tn इज इक्वल दिस, हमें एक रैंडम प्रोग्रेशन का nth टर्म मिला है और हम जब इसको देख रहे हैं हमें पता चल रहा है कि दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज एन AP, एक AP का nth टर्म है। तो कैसे करेंगे बेटे, एल्गोरिथम याद है, पहले Tn-1 निकालो, nth टर्म आपको पता है तो n-1th टर्म निकालो, और n-1th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस आपको एक्सप्रेशन में इधर n की जगह n-1 लिखे तो एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड में भी n की जगह n-1 लिखो तो आपको n-1th टर्म मिल जाएगा। अरे गेट माय पॉइंट? यस सर। बस Yes, sir. मैं पढ़ाया था, ये नोट में लिखा था कि हाउ डू वी फाइंड आउट और हाउ डू वी फिगर आउट इफ ए प्रोग्रेशन इज एन AP और नॉट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस AP का nth टर्म निकालना होगा, उस AP का n-1th टर्म निकालना होगा। नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू फाइंड द nth टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, दैट इज हाउ वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, राइट, वन टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, Tn-1। So let's just find out Tn is what, n plus b minus this is what, an minus a plus b, and after opening the brackets, are you get it? यस सर। Yes, sir. Okay, so you see, Yes, sir. okay, so you see for yourself that here this is a progression, and I proved it that nth term minus n-1th term is any term minus its previous term. Nth term means what? It could be any term, it is a general term. Nth term could be 5th term, it could be 6th term, it could be 7th term, it could be 8th term. And if I replace n with whatever number, I will get that number term. So any number, any term minus the previous term here is coming out to be a constant.
And what is it? If in a progression one term minus its previous term is a constant, then what do we call? We say that the progression is what? An AP, right? Are subtract n minus 1th term minus nth term, and if it is a constant, that is an AP. Remember or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, it is an AP. Because this nth term could be any term. N is a variable. It could be 100th term. If you put 100 here, suppose if you put 100 here, T100 मतलब means let me just explain to you. हमारे पास ये जो AP है, मैं अगर n की जगह 100 डालता हूँ तो 100 और ये क्या 99 इज इक्वल टू a. मतलब इस AP का 100th टर्म से 99th टर्म माइनस कर तो a मिल रहा है. चलो n की जगह कुछ और डालते हैं, सपोज 99 डालते हैं, मतलब 99th टर्म में से उसका n-1 98 उसको ही माइनस करने से a मिल रहा है. 7 डालते हैं तो इसका मतलब ये प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करो, एक सेम कांस्टेंट मिल रहा है. ये AP है ना, बस वही होता है कॉन्सेप्ट. सो टेक द स्क्रीनशॉट. टेक इट 1 सेकंड. इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में और कुछ नहीं. स्टोरी नहीं लिखना है. डोंट नीड टू राइट पूरा स्टोरी नहीं लिखना है. हाँ ये छोड़ो. हाँ इसको लो, प्रूफ लिखो. स्टोरी नहीं लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ बस उतना ही लिखना है. कोई इधर उधर के मत लिखना, वर्ड मत दे के मत लिखना बेटे. एक्सप्लेनेशन में नहीं मांगूंगा, बस आपको प्रूव करना है कि AP है. ओके, लेट मी रेज इट. ओके बस. हेलो, गेट इट. ओके Yes, sir. सर. देखो आपका nth टर्म माइनस टी n माइनस 1th टर्म ए आया था कि नहीं अभी. देखो कांस्टेंट. दैट्स व्हाई एन AP. ओके सो क्वेश्चन इज, लेट मी राइट डाउन ए क्वेश्चन. द nth टर्म of a progression is 4n plus 5. What kind of progression is it? What kind of progression is it? अगर एक प्रोग्रेशन का nth टर्म इज 4n plus 5 तो ये किस टाइप का प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर कुछ और? क्या है बेटे? ऑब्वियसली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? क्योंकि nth टर्म इसका लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है. सो आंसर इज व्हाट? AP. अरे राइट. Yes, sir. ओके. यस सर. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग, मैं इस AP का कॉमन डिफरेंस ही बता सकता हूँ. ये AP का कॉमन डिफरेंस बिना इसका फर्स्ट टर्म निकाले, सेकंड टर्म निकाले, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाले, कुछ ना निकाले, डायरेक्ट इसका कॉमन डिफरेंस बोल सकता हूँ. कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ n का जो कोफिशिएंट है बेटे, ये लीनियर एक्सप्रेशन में n का कोफिशिएंट क्या है बेटे? 4. इसका कॉमन डिफरेंस होगा 4. याद रखो. और आपको अभी याद आना चाहिए कि अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने AP का AP क्या लिए थे? AP का nth टर्म क्या लिए थे? n प्लस b, और वहाँ पर Tn माइनस 1 क्या आया था बेटे? a आया था कि नहीं? अरे यही तो कॉमन डिफरेंस होता है. nth टर्म माइनस b, ये तो कॉमन डिफरेंस होता है. a आया था कि नहीं? अरे आया था कि नहीं? यस सर. और n का कोफिशिएंट यही है ना, n का कोफिशिएंट यही है ना. बस का मतलब क्या होता है कि बस कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो n का कोफिशिएंट है वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा, वही प्रोग्रेशन का. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. लेट मी रेज इट. यस सर. ओके. यस सर. राइट ऑल दिस डाउन इन क्लास नोट कॉपी, राइट? सब क्लास नोट कॉपी लिखना. ओके. ये क्वेश्चन करते हैं बेटा. फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2-digit numbers which when divided by 4 yield 1 as remainder. मतलब हम वो सारे 2-digit नंबर का सम निकालने जा रहे हैं. जिनको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर में मिलता है. तो कैन एनीबडी गिव मी
one two-digit number which when divided by 4 yields 1 as remainder. 13, right? 13. If I divide 13 by 4, what do I get as remainder? 1, right? 1. That is to say 13 is a two-digit number. 13 is a two-digit number which when divided by 4 yields remainder 1, right? Okay. In fact, 13 is the first two-digit number which when divided by 4 yields remainder as 1. Because आप देख लो, जब आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे, पहला टू डिजिट नंबर क्या होता है बेटा? 10 होता है, राइट? डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है, राइट? बस, तो ये नहीं होगा। 11 को बेटा डिवाइड करके देखो। अरे समझ रहे हो मेरी बात? ये भी नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. हमें रिमाइंडर 1 चाहिए, राइट? हाँ, मतलब 13 इज द फर्स्ट टू डिजिट नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करने से तो 1 आता है। तो ऐसे वो सारे टू डिजिट नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने से आंसर 1 आएगा, हाँ मतलब सॉरी रिमाइंडर 1 आएगा, उनका सॉम निकालना है। अच्छा, बता सकते हो 13 का नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जिसको 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आएगा? 4 ऐड करते चलो बेटा, 4 ऐड करते चलो, हाँ 4 ऐड करते चलो। 13 प्लस 4 इज व्हाट? 17। अरे बेटा 4 ऐड करते चलो, मिल जाएगा आपको। हाँ, इसमें 4 डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 होगा। 4 डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 होगा। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, क्लियर? Yes. अच्छा, तो लास्ट वाले निकालते हैं। लास्ट कौन सा नंबर होगा? लास्ट कौन सा टू डिजिट नंबर होगा? हाँ, इसको हमें डिवाइड करने से अभी नहीं निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिलहाल निकाल ही देते हैं। चलो निकाल ही देते हैं। लास्ट टू डिजिट नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करने से आंसर रिमाइंडर 1 आता है। तो जरा बेटा देखो 99 को जो है 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है रिमाइंडर? चेक करो। अरे 3 आता है, राइट? 3 आता है। अरे गेट इट? हेलो? Yes, sir. हाँ, 98 को अगर डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 2 आएगा ऑब्वियसली। अरे समझ रहे हो ना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. 2 आएगा रिमाइंडर, राइट? 97 को अगर डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा बेटे? 1 आएगा, राइट? अरे पीछे जा रहे हैं बेटे। 1. Yes, sir. 99 को डिवाइड करने से 4 से रिमाइंडर 3, 98 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2, तो 97 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 1, राइट? अच्छा, कौन बताएगा 96 को डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा? गधों 0 Sir, आएगा। 0. 97 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट? अरे पीछे जा रहे हैं। 3 2 1 0 रिमाइंडर घटता जाएगा, राइट? ओके। अच्छा, 95 को अगर 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या है? कौन बताएगा? अरे बताओ रे, स्कूल में सब पढ़ के आए होगे। अरे रिपीट होगा, फिर से 3 रिपीट होगा। हाँ, फिर 94 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, 93 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। अरे समझ में आ रहा है? 92 से डिवाइड करोगे Yes, sir. रिमाइंडर 0। हाँ देखो 4, ये 2 9, ये 4 से डिविजिबल है, देख रहे हो? हाँ, फिर जब आप 91 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? रिपीट होगा, 3। हाँ, ये बेटा स्कूल में पढ़ के आएगा ये सारे। हेलो? अरे क्या साइलेंट क्यों बाकी सब भाई? मुझे एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब एक टाइप का पूरा तब उसी दिन से बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी वो थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा है, तो बोलने में तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मतलब एक्सट्रीमली पेनफुल जो मैं बोल रहा हूँ। वो मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको भाई, ईबोला जो उसके पास होता है ना, टॉन्सिल, वो थोड़ा जैसे फूल गया जैसे लग रहा है मुझे, बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है, तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं दे पा रहा हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोऑपरेट करो मेरे साथ, ओके? हाँ, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 97 ना, ओके। तो हम ये सबको ऐड करके इसका वैल्यू निकालना है, वही पूछ रहा है हमें वही पूछ रहा है कि फाइंड द हाँ, इसका वैल्यू हमें सवाल में पूछा है कि वो सारे 2 डिजिट नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आएगा उनको ऐड करो और वैल्यू निकालो। तो वेरी इजी। सॉम निकालने के लिए बेटा देखो, ये पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि दिस इज एन एपी। क्यों?
क्योंकि एक टर्म में एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है जिसको ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिला है। एंड व्हाट इज दैट कॉमन डिफरेंस बेटे? 4, राइट? यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। द कॉमन डिफरेंस हियर इज 4 एंड इट इज एन एपी। वेल, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी? A. What is A here? What is the first term? And what is the first term? 13. 13, right? Okay. And what is the last term? Let's call it L. What is the last term? 97. Sorry, 97, right? The last term is 97. Clear? यहाँ तक clear बेटे सबका? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म आपको पता है एंड उसका लास्ट टर्म भी पता है एंड उसका कॉमन डिफरेंस पता है, अगर ये तीनों पता है तो और भी एक फॉर्मूला है। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस तीनों पर सब पता है तो आपको उसका सॉम भी निकाल पाओगे आराम से। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 1 सेकेंड हो जाएगा। हाँ, यस। तो एक डायरेक्ट फार्मूला है बेटे कि अगर एपी का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म को पता है, सो देयर इज अ डायरेक्ट फार्मूला, सम ऑफ द टर्म्स। डायरेक्ट फार्मूला इज n/2 इंटू a प्लस एल। बस काम खत्म। आपको पढ़ाया था वो फार्मूला कि अगर फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना चाहते हो तो फार्मूला क्या पढ़े थे हम अभी? हेलो, फार्मूला क्या पढ़े थे? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। हाँ बस। अब जरा इसमें देखो ना, इसको अगर मैं स्प्लिट कर देता हूँ n/2, 2a को अगर a प्लस a कर देता हूँ, सेम बात है। ओके ओके। हाँ, ये क्या है बेटे? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, राइट? रिमेंबर? ओके। Yes, sir. अच्छा बेटे, ये किसका फॉर्मूला है? इजंट इट nth टर्म का फॉर्मूला? क्या nth टर्म का फॉर्मूला है कि नहीं? a प्लस n माइनस 1 nth टर्म का फॉर्मूला। और बेटा Yes, sir. और बेटा आप पहला n टर्म्स का सम निकालना चाह रहे हो। पहला n टर्म्स का सम निकालना चाहते हो, मतलब t1, t2, t3, t4 ऐड करके कब कहाँ तक ऐड करना चाहते हो? tn तक ऐड करना चाहते हो। nth टर्म को ऐड करके वैल्यू निकालना चाहते हो। तो इसका लास्ट टर्म nth टर्म ही होगा ना? लास्ट टर्म इसका nth टर्म ही होगा ना? तो इसका जगह मैं एल लिख देता हूँ। तो फार्मूला मिल गया बेटे। ये भी और एक फार्मूला है। अरे गेट इट, इसका और एक फार्मूला। हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, वेरी इजी, वेरी इजी। बस तो ये निकालना है। तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हमें और एक चीज़ का वैल्यू चाहिए। वो चीज़ क्या है बेटे? एन का वैल्यू चाहिए। क्या है? किसका वैल्यू चाहिए? वी नीड द वैल्यू ऑफ एन, राइट? एन तो अननोन है ना। एन मतलब क्या होता है कि कितने न फर्स्ट पहला कितने टर्म्स का सम आप निकालना चाह रहे हो। फर्स्ट कितने टर्म्स का सम निकालना चाहते हो? कि फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना चाहते हो, दैट इज n। और वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर। तो कैसे निकाले बेटे? देखो ट्रिक कैसे टू फाइंड n। थोड़े मुझे बताओ, इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हम बोलेंगे क्या? tn, राइट? अभी बोला था लास्ट टर्म इज nth टर्म, राइट? क्योंकि आप पहला n टर्म का सम निकालना चाहते हो, वही इसका लास्ट टर्म है, राइट? मतलब यहाँ पर हमारा टर्म से 13, 17, 21 डॉट 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 अप टू 97। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितने टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे अप टू ये कितना नंबर वाला टर्म है। मतलब इसमें कितने टर्म टोटल हैं, कितने टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, पहला कितना टर्म को ऐड करें। तो क्या कर लेंगे, ट्रिक क्या लगाएंगे कि मानो देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, मानो देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, मानो लेट्स अस्यूम दैट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स and obviously 97 will be what? The nth term, right? अरे get it? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. okay. तो Yes, मुझे बस इसी n का वैल्यू निकालना है। यही n ही मेरा आंसर है क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म ही है। तो n कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला एक है, क्या है बेटे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 97 ईयर। जिसमें कि a क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म, जो कि हमें पता है, व्हाट इज इट? 13, राइट? Here in this case is 13 plus n minus 1 into d. What is d here? What is the common difference? 4. 4.
So it is 13 plus 4n minus 4 is equal to 97. Right? Okay. So 13 minus 4 is what? 11. 11 उस साइड में आ जाएगा तो 4n is equal to 97 minus 11 कितना होगा? 86. Got it? एक सेकेंड गाइस. Again sir, good morning. Sir.